बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our second lecture with the name of Allah who is most beneficent and merciful. This is class 8 and period is science, and this is our second lecture. In first lecture we discussed about food and nutrients, and first of all I am giving a short review about first lecture. In first lecture we discussed about food. What is the purpose of food? What does food provide us? Food provides us energy to do our work and to perform the vital functions of the organs of our body, and as well as food provides us materials and substances which are necessary for the growth of our body, for the growth of new cells of the body, and to repair the damaged parts of the body. As well as food provides us substances, components which are necessary for our health and to fight against diseases. As we are discussing about the substances and components of the food, the substances and components of the food which are present in the food are called as nutrients, and different type of food contain different type of nutrients. There are 7 different nutrients present in our food, like carbohydrates, fats, protein, fiber, vitamins, minerals and water. We have discussed about carbohydrate, fats and proteins. These 3 are the main source of energy. These 3 are main suppliers of energy. हमें ज़्यादातर एनर्जी जो है इन्हीं 3 न्यूट्रिएंट से मिलती हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स हैंगे. And proteins are also the building blocks of our body. We were discussing in last video about the protein, and the protein is essential organ and is essential nutrient, and protein is necessary for the building of new cells, for the formation of new cells, for the growth of new cells, and for the formation, for the growth of tissues and enzymes, for the formation of hormones. We have discussed it. Okay, now come to our today's lecture. In this lecture we will discuss about the deficiency disease of protein. The disease which is caused by the deficiency of protein is called as kwashiorkor. In this disease a person lost his muscles and lost his fat and belly become distended. क्या मतलब हुआ कि इस डिजीज़ के अंदर जो पर्सन है वो बिल्कुल सूख जाता है, वो लीन हो जाता है, उसके मसल्स ख़त्म हो जाते हैं, उसकी बॉडी का फैट ख़त्म हो जाता है और बेली इनलार्ज हो जाती है, एक्सटेंडेड हो जाती है. दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड एज kwashiorkor. एंड द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर बीन्स, pulses, eggs, मिल्क एंड मीट. चाहे फिश हो या कोई बीफ हो, मटन हो, तमाम मीट्स के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है. नाउ फोर्थ न्यूट्रिएंट इज फाइबर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रफेज. Fiber is also called as roughage. Fiber is made up of cellulose. Okay, fiber is made up of cellulose. As I have told you that cellulose is a type of carbohydrate which is प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल. ये भी आपको पहले बताया जा चुका है कि प्लांट सेल में आउटर लेयर जो होती है वो सेल वॉल होती है, और उस सेल वॉल के अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है जो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है. इस सेल वॉल, ये सेल वॉल किससे बनती है? ये सेल वॉल सेल्यूलोज से बनती है.
So fiber is made up of cellulose which is present in the cell wall of plant cell. Okay, now what are the sources of fiber? Fiber is present in fruits, vegetables and brown rice and whole wheat bread. Sahi? Fiber is also called as roughage and it is made up of cellulose which is the main constituent of cell wall which is present in the cell wall, and these fibers are present in fruits, in vegetables, in brown rice and in whole wheat bread. Okay, now what is the function of fiber? फाइबर इज़ अनेबल टू डाइजेस्ट बाय आर डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, हमें इससे कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी नहीं मिलती है, बट दिस फाइबर इज़ एसेंशियल फॉर द फंक्शन एंड हेल्थ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. It is necessary for health and function of large intestine. And if one person does not consume adequate amount of fiber, it can suffer in a problem of constipation. So deficiency disease of fiber is constipation. अब तक हमने क्या पढ़ा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. दे आर मेन एनर्जी सप्लायर्स एंड प्रोटीन इज responsible for the building of our body, and the fourth one is fiber or roughage. Fiber is also called as roughage, and fiber is present in the cell wall of fiber is made up of cellulose which is present in the cell wall of plant cell, and fiber is present in fruits, vegetables, brown rice and whole wheat bread. And the function of fiber is that it is unable to digest by our digestive system, but it is necessary, it is essential for the health and for the function of large intestine. And if one person does not consume adequate amount of fiber, it can suffer in the problem of constipation. Now fifth nutrient is vitamins. Vitamins are needed in small amount by our body. Vitamins हमें बहुत small amount में चाहिए होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए essential होते हैं. ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. So vitamins are needed in a small amount. It is needed in a small amount by our body, but they are essential for health and for growth of our body. Different types of vitamins are present, like vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin A, E and vitamin K. So first of all we will discuss about vitamin A. Vitamin A is essential for normal vision एंड फॉर हेल्दी स्किन. ये हमारी आइज़ के लिए और हमारी स्किन के लिए एसेंशियल होते हैं. विटामिन ए
is essential for our normal vision and for our healthy skin, and the deficiency of vitamin can cause night blindness and rough and scaly skin. Rough and scaly skin. विटामिन ए क्यों ज़रूरी है? हमारी आईसाइट के लिए, हमारी विजन के लिए ज़रूरी होती है, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है। और विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो, कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि उसकी सही मिकदार अपनी डाइट में नहीं लेता है, तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है और इसके साथ साथ उसकी स्किन रफ और स्केली हो सकती है। एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए इज़ प्रेजेंट इन रेड एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, red and green vegetables, as well as it is present in liver and is present in dairy product and egg. Now come to the vitamin B. Vitamin B is essential for the function of muscles. ये मसल्स के फंक्शन के लिए और नर्व्स के फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। The deficiency disease of vitamin D is beriberi. जो इसकी deficiency disease होती है, अगर बॉडी के अंदर इसकी लैकनेस है, सही अमाउंट में हम इसको नहीं लेते हैं, हमारी डाइट के अंदर विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, उसको हम सही तरह से नहीं लेते हैं, तो जो डिजीज़ कॉज होती है इट इज़ कॉल्ड एज बेरी। और इस बेरी की डिज़ीज़ में क्या होता है कि हमारे मसल्स के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे नर्व्स के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी हार्ट में प्रॉब्लम आने लगती है, हार्ट का फंक्शन, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन और ब्रेन का फंक्शन इफेक्टेड होने लगता है। तो बेरी इज़ द डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। एंड विटामिन बी इज़ प्रेजेंट इन पीज as well as in liver. Okay, vitamin A is essential for our normal vision, for healthy and glowy skin, and vitamin A, the deficiency of vitamin A can cause disease of night blindness and dry and scaly skin. And vitamin A is present in red and green vegetables, in eggs, in liver and dairy products. It is also present. Vitamin B. Next vitamin is vitamin B. Vitamin B is essential for the function of muscles and nerves. As you know, these all are muscles. ये जो हमारा मास नज़र आता है, बॉडी मास, ये हमारे मसल्स होते हैं। तो इनकी मसल्स और नर्व्स की प्रॉपर फंक्शन करने के लिए विटामिन बी ज़रूरी होता है। और विटामिन बी की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो बेरी कहलाती है। और विटामिन बी मौजूद होता है पीस के अंदर और लिवर के अंदर। नेक्स्ट विटामिन इज़ विटामिन सी। Vitamin C is essential for the function of gums and teeth. यह हमारे गम्स के और टीथ के फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो कोलेजन प्रोटीन कहलाती है, उसकी फॉर्मेशन के लिए विटामिन सी ज़रूरी होता है। और विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, हमें डिज़ीज़ से प्रिवेंट होने में, हमें डिज़ीज़ से बचने में भी हेल्प आउट करता है। तो विटामिन सी इज़ नेसेसरी, इज़ एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ गम्स एंड टीथ। एंड the deficiency disease of vitamin C is called as scurvy. विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो डिज़ीज़ होती है वो स्कर्वी कहलाती है। और इस डिज़ीज़ में विटामिन सी की जो डिज़ीज़ डेफिशिएंसी डिज़ीज़ है, इसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है हमारे गम्स और हमारे टीथ से। सो यहाँ पर क्या होता है स्कर्वी डिज़ीज़ के अंदर कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है गम्स और टीथ से। और विटामिन सी इज़ प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट। जितने भी जूसी फ्रूट होते हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लाइक टोमेटोज़, लाइक ऑरेंजेस, लाइक लेमन, इन सब के अंदर विटामिन सी एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है। नाउ नेक्स्ट विटामिन इज़ विटामिन डी। विटामिन डी इज़ एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ बोन्स एंड मसल्स।
ये हमारे बोन्स जो हड्डियां हैं और मसल्स जो हैं इनके फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो बॉडी के अंदर, आप नहीं लेते हैं विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में, तो इसकी डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में डिजीज़ होती है जो रिकेट्स कहलाती हैं। डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी इज कॉल्ड एज रिकेट्स। और इस रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं। इवन अगर डेफिशिएंसी की अमाउंट ज़्यादा हो, आपको बहुत ज़्यादा इसकी डेफिशिएंसी हो रही हो, तो फिर बोन्स बेंड भी होना शुरू हो जाती हैं। एंड विटामिन डी इज प्रेजेंट इन सनलाइट, इन एग्स, इन लिवर, और कुछ फ्रूट्स के अंदर भी विटामिन डी मौजूद होता है। डेयरी प्रोडक्ट में भी विटामिन डी मौजूद होता है। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन ई। विटामिन ई इज एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़। टिश्यूज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टिश्यूज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ cell which perform same function, which have same structure and shape, they are called as tissues. So vitamin E is essential for the function of cells and for the function of tissues. cell और tissue के function के लिए ज़रूरी होता है, और इसकी deficiency से क्या होता है कि cell और tissues का function disturbed हो जाता है, nerve और muscle degeneration हो जाती है, यानी कि वो सही तरह से properly work नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इसकी deficiency से क्या होता है, muscles and nerve degeneration can cause in hands and feet. And vitamin E is present in egg, vegetable oils and nuts oil. इन तमाम चीज़ों के अंदर विटामिन ई मौजूद होता है। लास्ट vitamin is vitamin K. Vitamin K is necessary for the clotting of blood. What is clotting? जब हमारे कोई डैमेज होता है, कहीं कट लगता है, ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है, और कुछ देर के बाद वो ब्लड जो लिक्विड फॉर्म में है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर एक खुरंड सी बन जाती है, एक सॉलिड मास बन जाता है, जिसे हम क्लॉट कहते हैं। तो विटामिन के इज नेसेसरी फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एंड अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा कि ये ब्लड की क्लॉटिंग के लिए नेसेसरी है, तो ब्लड क्लॉट होना स्टॉप कर देगा। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है और उसको कोई कट लगता है, तो उसका ब्लड जमेगा नहीं, यहाँ पे क्लॉट फॉर्म नहीं करेगा, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो जो तमाम ब्लड है बॉडी का वो बाहर रिलीज होता रहेगा। और विटामिन के कहाँ मौजूद होता है? विटामिन के इज प्रेजेंट इन लिवर एंड वेजिटेबल ऑयल्स। ऑयल के अंदर जो वेजिटेबल ऑयल हासिल करते हैं हम, उनके अंदर विटामिन के मौजूद होता है। ओके, इट्स ऑल अबाउट विटामिन। हमने क्या पढ़ा कि विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी बट वी नीडेड इट इन स्मॉल अमाउंट। बहुत कम अमाउंट में हमें इसकी ज़रूरत होती है। डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स आपसे डिस्कस करें, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। उनके आपको फंक्शन भी बता दिए, उनके आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ भी बता दी गई, और उनके आपको सोर्सेज भी बता दिए गए। नाउ there are two types of vitamins. Some vitamins can dissolve in water and some vitamins can dissolve in fat. तो दो तरह के vitamins हो गए, fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Water soluble vitamins कौन कौन से होते हैं? Vitamin B and vitamin C are water soluble vitamins. They can dissolve in water. ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हो गए, जबकि विटामिन ए, डी, ई एंड के दे ऑल आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स।
कि ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं, बल्कि ये हमारी बॉडी में जो फैट मौजूद है उसमें डिज़ोल्व होते हैं। यहाँ विटामिन ए को भी आप ऐड कर लीजिए, इट इज़ ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन। तो दो तरह के विटामिन हो गए, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन। विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल वाइटामिन बिकॉज दे कैन डिज़ोल्व इन वाटर, एंड विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल वाइटामिन बिकॉज दे कैन डिज़ोल्व इन फैट एंड दे आर डिपॉजिटेड इन आर फैटी टिश्यूज़। हमारी बॉडी के अंदर जो फैटी टिश्यूज़ मौजूद हैं, जो यहाँ फैट के टिश्यूज़ होते हैं, उनके अंदर ये डिपॉजिट हो जाते हैं। विटामिन बी और सी क्योंकि वाटर सॉल्युबल हैं, इसलिए इनको हमें डेली बेसिस पर लेना पड़ता है, क्योंकि ये वाटर के साथ हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। फैट सॉल्युबल वाइटामिन फैट में डिज़ोल्व होकर हमारी फैटी टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए हमें डेली बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। Okay, now next nutrient is minerals. जिस तरह से विटामिन्स हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, हमें बहुत कम मकदार में चाहिए होते हैं, इसी तरह से मिनरल्स भी हमें बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में, टाइनी अमाउंट में चाहिए होते हैं। दे आर नीडेड इन वेरी टाइनी अमाउंट बाय आवर बॉडी, बट दे आर एसेंशियल। जिस तरह से हमने पढ़ा कि विटामिन्स भी एसेंशियल हैं फॉर द ग्रोथ एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आवर बॉडी, इसी तरह से जो मिनरल्स हैंगे वो भी एसेंशियल होते हैं फॉर growth and development of our body. Minerals are needed in a small amount by our body. What is the function of minerals? They are necessary for the health and for the development and growth of our body. Health, growth and development of our body. मिनरल्स भी मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स हमारी डाइट में इंक्लूड होते हैं, लाइक कैल्शियम, आयरन, आयोडीन एंड सोडियम। First of all, we will discuss about calcium. Calcium is a mineral which is present in our diet. Calcium क्यों ज़रूरी होती है? Calcium is necessary for the function of bones and muscles. ये हमारे बोन्स के लिए, हमारे मसल्स के लिए ज़रूरी होती हैं। और अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो उस डेफिशिएंसी को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इस डिज़ीज़ के अंदर बोन्स वीक हो जाती हैं, बोन्स पोरस हो जाती हैं और इजीली ब्रेक भी हो जाती हैं। ठीक है, कैल्शियम इज़ अ टाइप ऑफ मिनरल विच इज़ प्रेजेंट इन आवर डाइट एंड calcium is necessary for the function, for the health of bones and muscles, and deficiency disease of calcium is called as osteoporosis, and in this disease bones and muscles, bones become weak and become soft, and they become porous and they can easily break down. Now calcium is present in, we get calcium from dairy product, ये हमारी डेयरी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होती है कैल्शियम। Calcium is present in eggs and fruits and vegetables. Now next nutrient is iron. Next mineral is iron. Iron is a mineral which is essential for our body. Iron is necessary for the hemoglobin. Hemoglobin क्या होता है? Hemoglobin is a red pigment which is present in red blood cells. हमारे ब्लड के अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं, white blood cells, red blood cells and platelets and so on. Hemoglobin is main ingredient, main component of red blood cell. ये red blood cell के अंदर मौजूद होता है। तो iron is essential for hemoglobin and hemoglobin is red pigment which is present in red blood cell. And deficiency disease of iron is called as anemia.
एनीमिया डेफिशिएंसी डिजीज़ है आयरन की। इसके अंदर क्या होता है, अगर किसी पेशेंट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, उसका कलर पेल हो जाता है, आइस का स्किन का कलर पेल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है। रेड ब्लड सेल नहीं बन पा रहे होते हैं और हमारे ब्लड का रेड कलर रेड ब्लड सेल की ही वजह से होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आयरन की डेफिशिएंसी होगी, हीमोग्लोबिन फॉर्म नहीं होगा, हीमोग्लोबिन फॉर्म नहीं होगा तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, और इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर थकन महसूस होगी, वीक हो जाएगा। जो भी पेशेंट है वो वीक होगा और उसको बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो रही होगी, उसको सीढ़ियाँ चढ़ने में या रनिंग में जो है उसकी सांस फूल रही होती है। उसको फटीग की कंडीशन भी हो सकती है कि अगर बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी हो तो वो बेहोश भी हो सकता है। नाउ हम कहाँ से आयरन हासिल करते हैं? आयरन मौजूद होता है रेड ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर और रेड ग्रीन फ्रूट्स के अंदर। इसके अलावा आयरन हमें लिवर से भी मिलता है, एग में भी आयरन मौजूद होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मिनरल इज आयोडीन। Iodine is necessary for the hormone of thyroid gland. थायराइड ग्लैंड क्या होता है? एक ग्लैंड मौजूद होता है जो हमारी नेक में होता है और इस ग्लैंड को हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड से एक सिक्रीशन रिलीज होती है जो उसका हार्मोन कहलाता है, वो थायराइड हार्मोन होता है। और थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन के लिए आयोडीन नेसेसरी है, उसकी फॉर्मेशन के लिए आयोडीन ज़रूरी होता है। तो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो जो डिजीज़ है वो गॉइटर कहलाती है, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड स्वेल अप हो जाता है और नेक भी इनलार्ज हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है। आयोडीन हमें कहाँ से मिलती है? आयोडीन हमें मिलती है लिवर से और वेजिटेबल्स से। वेजिटेबल ऑयल के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर आयोडीन मौजूद होती है। नेक्स्ट मिनरल इज सोडियम। सोडियम क्यों ज़रूरी है? सोडियम हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है, हमारी बॉडी वाटर से बनी है, हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर मौजूद है, तो हम उसको जो वाटरी कंपोनेंट है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। जो बॉडी फ्लूइड है उसके फंक्शन के लिए, उसकी रेगुलेशन के लिए सोडियम नेसेसरी होता है। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड की रेगुलेशन के लिए ज़रूरी होती है, और अगर हम इसे एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो इट कॉज हाई ब्लड प्रेशर। एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर। इससे हाई ब्लड प्रेशर होता है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये मौजूद होता है टेबल सॉल्ट के अंदर। जो हम कॉमन सॉल्ट खानों में यूज़ करते हैं उसके अंदर सोडियम मौजूद होता है। तो ये कॉमन सॉल्ट के अंदर, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इसके अंदर ये मौजूद होता है, जो कि NaCl भी कहलाता है। ओके, नाउ मिनरल्स। वी नीडेड minerals in very small amount, but they are essential for the health, for the growth and for the development of our body. Different types of minerals are present in our diet like calcium, iron, iodine and sodium. कैल्शियम क्यों ज़रूरी है? कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए, बोन्स और मसल्स के फंक्शन के लिए ज़रूरी होती है, उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। और अगर बोन्स में या मसल्स के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो फिर वो डिजीज़ कहलाती है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके अंदर बोन्स वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं और इजीली बेंड भी हो सकती हैं, फ्रैक्चर भी हो सकती हैं। किन किन चीज़ों के अंदर कैल्शियम मौजूद होती है? डेयरी प्रोडक्ट के अंदर, एग के अंदर, लिवर के अंदर, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर कैल्शियम मौजूद होती है। नाउ आयरन इज एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज रेड पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स एंड द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? पर्सन या पेशेंट जो है वो लेथार्जिक हो जाता है, वीक होता है, फटीग होने लगता है, उसको एनर्जी की कमी महसूस होती है। किसके अंदर मौजूद होता है आयरन? वेजिटेबल्स के अंदर, रेड और ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर, लिवर और एग के अंदर
आयरन मौजूद होता है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड नेक में मौजूद होता है और थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशन है, जो हार्मोन है, वो थायराइड हार्मोन कहलाता है और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो गॉइटर कहलाती है। ये लिवर और वेजिटेबल्स में मौजूद होता है। इसके बाद सोडियम रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड के लिए ज़रूरी होता है। इसकी डेफिशिएंसी, ये हम अगर एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो ये हाई ब्लड प्रेशर कॉज करता है और ये कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड में मौजूद होता है। नाउ लास्ट न्यूट्रिएंट इज़ वाटर। आप सबको पता है वाटर हमारे लिए ज़रूरी है। वाटर से हमें एनर्जी नहीं मिलती, वो हमें किसी भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन वाटर हमारी बॉडी में होने वाले फंक्शंस के लिए, सेलुलर फंक्शन के लिए और लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। लास्ट न्यूट्रिएंट इज़ वाटर। हमारी बॉडी का 70% जो है वो वाटर से बना हुआ होता है। हमारी बॉडी में 70% वाटर है, 30% बाकी तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और वाटर क्यों ज़रूरी होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सेल के अंदर वाटर मौजूद है। सेल में वाटर है, सेल की कॉम्पोजिशन के लिए, सेल के फंक्शन के लिए वाटर नेसेसरी है। हम फूड लेते हैं, वो फूड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना ज़रूरी होती है और वो फूड जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगी, जब तक कि वो अपने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट नहीं जाती। इस ब्रेकडाउन के लिए लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक करने के लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत होती है। इसके बाद ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होना होता है। उसके एब्जॉर्प्शन के लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत होती है। ब्लड के अंदर आप देखें ब्लड लिक्विड है, ये हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसके अंदर भी वाटर ज़रूरी होता है। इसी तरह से मटेरियल्स को बॉडी के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी से वाटर रिलीज़ भी हो रहा होता है पर्सपायरेशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू, और इसी तरह से जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो उसके साथ वाटर वेपर्स भी रिलीज़ होते हैं। सो डेली हमें 6 to 8 ग्लासेस वाटर के लेने चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर हमें कंज्यूम करना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. This is the first part of our lecture, and the remaining topic we will discuss in second part.